آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا کا ہیڈ لائن شو۔ آج ہے 25 دسمبر 2024۔ میں ہوں عادل خان آزاد۔ دنیا کے سب سے بڑے اخباروں اور پورٹلز سے چنی گئی سب سے بڑی خبروں میں آج آپ دیکھیں گے، نہیں مان رہے یمن کے لڑاکے، پھر داغی میزائل، اسرائیلی ملٹری اڈہ ہٹ کرنے کا دعویٰ، کیا آئرن ڈوم بن گیا موم؟ یمن کے حملے سے اسرائیل میں بھگدڑ، زائنی حکومت بولی لاکھوں لوگ شیلٹرز کی طرف بھاگے، UN80 میں آج یمن سے نپٹنے پر میٹنگ۔ سیریا کے ماڈرن ایئر ڈیفنس سسٹمز چوری کر رہے ہیں امریکی فوجی، ڈیر الزور میں آرمی بیس پر حملے اور ڈکیتی کا دعویٰ، اور قزاقستان میں 67 لوگوں کو لے جا رہا پلین ہوا کریش، حیران کرنے والے حادثے میں 25 لوگوں کے بچنے سے دنیا زیادہ حیران۔ تو چلیے کرتے ہیں شروعات۔ جتنی بھی ہیڈ لائنز اس سے کہیں زیادہ ہوں گی خبریں۔ وہ سبھی لوگ جو کرسمس مناتے ہیں ان سبھی کو میری طرف سے مبارکباد۔ آپ لوگ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ یمن کے حوثیز نہیں مان رہے، کسی کے قبضے میں نہیں آ رہے۔ امریکہ، برٹین، اسرائیل سبھی نے ایئر اسٹرائکس کر لی، لیکن یمن کے حوثیز نے لگاتار چوتھے دن اسرائیل پر حملہ کیا۔ آج بھی بیلسٹک میزائل داغی۔ کرسمس کے دن بھی یمن کے حوثیز نہیں تھکے نہ چھٹی کی، اور انہوں نے میزائل داغ کر یہ کہا کہ جب تک غزہ پر اسرائیلی حملے بند نہیں ہوتے اور غزہ کی گھیرا بندی ختم نہیں ہوتی، ہمارا جو حلف ہے ہم اس پر قائم ہیں اور ہم اسرائیلی علاقوں کو دہلاتے رہیں گے۔ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے خود ٹی وی پر آ کر یا اپنا ویڈیو جاری کر کے یہ اعلان کیا کہ آج پھر ہم نے تیل اویو پر میزائل حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کی راجدھانی محفوظ نہیں ہے۔ اسرائیل کی راجدھانی کی، اسرائیل کی دارالحکومت کی جب اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں تو باقی علاقوں کا حال تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بار بار بیلسٹک میزائل سے ہوئے نقصانوں کی تصویر چھپائی جاتی ہے، لیکن کل رات ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ اصلی تصویر سامنے آ چکی ہے۔ نقصان بہت بڑا ہوا، ویسا ہی ہوا جیسے کسی بیلسٹک میزائل سے ہونا چاہیے۔ عمارت ختم ہو گئی، گڈھے پڑ گئے بڑے بڑے، ہمیں چھوٹے گڈھے شروعات میں آئی ڈی اپنے دکھائے تھے۔ آج بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے یہ کہا کہ ہم نے زائنسٹ ملٹری پوزیشن کو جافا، جسے تیل اویو دنیا جانتی ہے، اس کا پرانا نام جافا ہے، تو جافا کو ہم نے پھر سے ہٹ کیا ہے پیلسٹین 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل سے۔ اب تیل اویو کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ دنیا سمجھ سکے جب اسرائیلی زائنی حکومت تیل اویو کو نہیں بچا سکتی تو پھر باقی علاقوں کو کیا بچائے گی۔ یہ ایک طریقے سے پریشر ڈالنے کی کوشش ہے تاکہ جو زیادہ سے زیادہ عوام رہتی ہے، بڑی آبادی جو رہتی ہے تیل اویو میں، اس تک یہ میسج پہنچ سکے کہ وہ اپنی گورنمنٹ پر پریشر ڈالیں اپنی حفاظت کے مد نظر کہ وہ غزہ میں حملے بند کر دے تاکہ یمن کے لڑاکے چپ جائیں، رک جائیں۔ یمن کے حوثیز یا انصار اللہ موومنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے، ہماری میزائل سکسیسفلی اپنے ٹارگٹ سے ٹکرائی ہے۔ انہی خبر میں دو اور خبر۔ دا ٹائمز آف اسرائیل، اسرائیلی اخبار ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ یمن نے میزائل داغی، سینٹرل اسرائیل پر داغی۔ یہ لگاتار چوتھی رات تھی اس ہفتے میں جو یمن نے ہم پر حملہ کیا۔ IDF نے ان کی میزائل کو انٹرسیپٹ کر لیا، مار گرایا، وہ ٹکرا نہیں پائی۔ اب یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے، اور یہ کہا گیا ملینز اسکرامبل ٹو بام شیلٹرز، بھگدڑ، ہمیں جانے دو، ہمیں جانے دو، للو ہمیں جانے دو، ایسے کر کے بھگدڑ مچی اور سارے لوگ شیلٹرز کی طرف بھاگے۔ سینٹرل اسرائیل میں لاکھوں لوگ، ملینز مطلب لاکھوں، یعنی 10 لاکھ تو 1 ملین ہوتا ہے، یہ 10 لاکھ سے بھی اوپر بھاگے۔ مطلب یہ حالت ہے اسرائیلیوں کی کہ بیچاروں کو ہر رات جو ہے، بیچارہ کوئی پازیٹیو ورڈ نہیں ہے، نیگیٹو ورڈ ہے جس پر ترس آ جائے۔ وہ بھاگے اور جا کر اپنی جان بچائی۔ انہیں بیچارہ بنا کر رکھ دیا ہے یمن کے حوثیز نے۔ وہ جو بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، بیچارے ہو گئے۔ اور with alerts activated in wider areas، چاروں طرف الرٹ پوں 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 بولے جا رہے ہیں۔ UN Security Council to hold ایمرجنسی میٹنگ آن اٹیکس۔ اب جو ہے UN کی سیکیورٹی کاؤنسل ایمرجنسی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں یمن کے حملوں کے مدعے پر۔ کیا یمن کو لے کر کوئی فیصلہ کریں گے؟ یہ UNSC غزہ میں حملے رکوانے پر تو فیصلہ کر نہیں پائی، یمن کے حملے رکوانے پر کر سکتی ہے۔ یمن اپنی فوج کو مضبوط کر رہا ہے، یہ المایدین کی ہیڈ لائن کہتی ہے، اور اسے ہرایا نہیں جا سکتا۔ یہ بات کسی اور نے نہیں، اسرائیلی ریزروسٹ جنرل نے کہی ہے۔ اس نے کہا کہ حوثیز کو ہرایا نہیں جا سکتا، اس چکر میں مت پڑنا
कि वो जो हजारों किलोमीटर दूर तुमसे, तुम उन्हें मार कर खत्म कर दोगे, जैसे तुमने लेबनान में तबाही मचा ली, जैसे तुमने गजा में मचा ली। वो यमन है, वो हाउथीज हैं। वो 10 साल तक अमेरिका और सऊदी से भिड़ते रहे। क्या किया? नतीजा तुम्हें पता है। वो मेज पर बैठे, उन्होंने अपनी एक पार्ट में हुकूमत बना ली। आप कहां भिड़ने जा रहे हो? आपके पास अमेरिका से बड़ा साजो सामान है, सऊदी से बड़ा है, होंगे बड़े तुम्हारे पास गुप्त हथियार, लेकिन ऐसा नहीं है। यह खुद कहा गया है। एक इजरायली रिजर्व जनरल ने यमन से निपटने में इजराइल के सामने आ रही तमाम चुनौतियों के बारे में बताया है। इजरायली रिजर्व ब्रिगेडियर जनरल एरॉन ओरताल, इनका नाम लेकर बयान सर्च कर लीजिएगा। इस एरॉन ओरताल ने कहा है कि यमन के साथ टकराव या जंग कई सालों तक चलेगी, ये महीनों में निपटने वाली नहीं है। साल से ऊपर तो गजा में हो गया। सालों तक चलेगी यमन के साथ जंग, भिड़ना मत। उन्होंने आगे कहा, हम एक नए युग की शुरुआत में हैं, जिसके लिए हमें इजराइल की पॉलिसी और खतरों के एक ग्रुप का सामना करने के लिए हमारी आर्मी की पॉलिसी पर फिर से गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इन्होंने ये सब कुछ इजरायली न्यूज़पेपर दावर के साथ एक इंटरव्यू में कहा। ओरताल के इस पूरी बातचीत में जो जुज निकला वो ये कि यमन इजराइल के खिलाफ लड़ाई में जितना गहराई से उतरेगा, कई लेवल्स पर वो उतना ही मजबूत होता जाएगा और इजराइल कमजोर होता जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यमन में जो उनकी हुकूमत की शबात है, जो इमेज है, वो मजबूत करने वाली बात ये है कि वो अभी भी इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में हैं, जबकि बाकी लोग इनएक्टिव हो गए हैं, यानी कम एक्टिव रह गए हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हमास हो। वो ये कहते हैं इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ यमन के हाउथीज हैं जो इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रख रहे हैं, और ये इससे उनकी शोहरत बढ़ रही है पूरी दुनिया में कि वो रुक नहीं रहे। अपने यहाँ तबाही होने के बावजूद रोज बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं और आयरन डोम रोक नहीं पा रहा। लेबनान की बात करते हैं सर। लेबनान के बीका रीजन में, जो ईस्टर्न लेबनान में आता है, वहां सीज फायर के बावजूद, पूरे लेबनान में सीज फायर किया है इजराइल ने, सीज फायर के बावजूद बड़े तरीके से हमले किए हैं, जुल्म हुआ है, घर इमारतें तोड़ी गई हैं। इजराइल ने 300 बार अकेले इस इलाके में, आप समझिए 27 नवंबर से आज तक इस सीज फायर की मुद्दत में वायलेशन किया है। ये सीज फायर नहीं, मखौल बनाकर रख दिया गया। अब आते हैं सीरिया वाली खबर पर। यूएस इरना न्यूज एजेंसी ईरान की है, उनकी खबर है कि यूएस फोर्सेस ने ये इत्तला दी है। यूएस फोर्सेस जो हैं वो सीरिया में एयर डिफेंस सिस्टम्स चुरा रही हैं। सीरिया की फौज के बशर अल असद के जमाने में खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम्स को अमेरिकन फौज चुरा रही है, और ये सीरियन सोर्सेस के हवाले से कहा गया है। और ये कहा गया है कि यूएस की आर्मी, उसके फौजी ऑफिशियल और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिसे अमेरिका की तरफ से मदद हासिल है, जिसे एसडीएफ कहते हैं, ये सीरिया की एक डेमोक्रेटिक फोर्स है, ये भी लड़ाके लड़ रहे थे। ये और अमेरिकन फौजी, एसडीएफ और अमेरिकन आर्मी मिलकर सीरियन आर्मी बेस पर हमला करने जाते हैं देर अल जोर में, ये इलाका है। और यहां पर इन्होंने आधुनिक मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स चुरा लिए। स्टीलिंग मतलब चुरा लिए, और बड़े वाले ट्रक्स भी इस बेस से गायब कर दिए। शायद ये उन ट्रक्स की ही तस्वीर है, लेकिन ये चोरी के वक्त की नहीं होगी। आपको एक निशानदेही के तौर पर बताया गया है कि इतने हैवी साइज ट्रक जिनमें मशीन गन्स और बाकी इक्विपमेंट्स फिट होते हैं, ये और एयर डिफेंस सिस्टम्स चोरी कर लिए। सर बढ़ते हैं आगे। टीआरटी वर्ल्ड की खबर है कि तुर्की की आर्मी को वहां पर पीकेके और वाईपीजी, ये एक और सीरिया का जो है एक हथियारबंद गुट है, उससे भिड़ना पड़ रहा है। अब ये कुर्द होते हैं, इनकी लड़ाई तुर्की से बहुत पहले से चली, करीबन 40 साल से। तो तुर्की की जो आर्मी है, उन्होंने 21 पीकेके वाईपीजी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया, उन्हें मारा है नॉर्थ सीरिया में और नॉर्दर्न इराक में भी। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी है। सीरिया में सब खामोश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई की शुरुआत है, ये समझ लीजिए। फ्रेश इजरायली अटैक्स किल 15 फिलिस्तीनी अक्रॉस गजा, 15 पैलेस्टीनियंस अक्रॉस गजा। आज जो 25 दिसंबर को अटैक्स हुए हैं, इन फ्रेश अटैक्स में 15 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। वहां यही सब है। हमास ने एक पैगाम देकर ये कहा है ज़ायनी फौज से और ज़ायनी हुकूमत से कि आपके मजालिम, आपकी जितने भी आप जुल्म का सिलसिला चला रहे हैं, हमारे ऊपर बम गिरा रहे हैं, गजा के आम आवाम को मार रहे हैं, इससे रेजिस्टेंस कमजोर नहीं होगा।
आप हमारी हिम्मत को तोड़ नहीं सकते। हमारी कुव्वत और सलाहियत के साथ हम आपका मुकाबला करते रहेंगे। ज़ायनिस्ट क्राइम्स वोंट वीकन रेजिस्टेंस रिसाइलेंस। रेजिस्टेंस फोर्स यानी हमास को या बाकी रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं गजा और फलस्तीन में, उन्हें कमजोर नहीं कर सकता इजराइल। आपके पास हथियार होंगे, हमारे पास हौसला है। ये इस आर्टिकल में लिखा है। कह रहे हैं कि गजा में जेनोसाइड जारी है। हम आलमी बिरादरी से ये मुतालबा करते हैं कि गजा की आम आवाम को बचा लीजिए, अस्पतालों को बचा लीजिए और बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। लेकिन हम ये भी कह देते हैं कि हम उनके आगे झुकेंगे नहीं। इस सब के बावजूद अल जजीरा फ़लस्तीन ने ये 2 फोटो शेयर किए हैं और ये मियाँ बीवी हैं। ये बताया गया है, लोकल सोर्स ने बताया है कि राइटर और आर्टिस्ट हैं जो बैठी हुई हैं। वाला अल इफ्रांजी राइटर और आर्टिस्ट हुआ करती थी ये गजा की, और ये इनके हस्बैंड हैं अहमद सलामा। ये दोनों मारे गए हैं अल नुसैरियत कैंप में। क्या खूबसूरत लोग थे, कितने खूबसूरत लोग चले गए, कितने फरिश्तों से बच्चे चले गए, फूल से बच्चे, ऐसे जैसे मखमल। ये नहीं रहे। आज क्रिसमस है, दुनिया भर में मनाया जा रहा है। गजा कैसे पीछे रह सकता था? गजा में सैकड़ों सालों से, सदियों से रहते आ रहे हैं ईसाई बड़े अमन और सुकून के साथ। पूरे फ़लस्तीन में यहूदी भी रहते थे। फिर ये ज़ायनी आ गए, फिर सब तफरका फैल गया, ये कहा जाता है। हालांकि गजा के अंदर अब भी एक चर्च सलामत है। मस्जिदों को तो शहीद कर सकता है इजराइल और उसकी फौज, लेकिन अगर चर्च को इन्होंने गिरा दिया तो क्या होगा? पूरे वेस्ट से इनके ऊपर जो है गालियां पड़ने लगेगी। तो चर्च सलामत है, अच्छी बात है। कहीं तो इंसानों की परवाह कर ली, भले ही उनका मजहब देखकर। तो वहां पर गजा में क्रिश्चियंस ने अब क्रिसमस मनाया। उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े प्यारे खूबसूरत, सब सलामत देख के खुशी हुई। अच्छे कपड़े पहने थे, अच्छा खाया भी होगा हो सकता है। उन सब ने अमन और सुकून के लिए दुआ की। और हाँ, क्रिसमस की बात आई है तो जिन जिन लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबका जवाब नहीं दे पाया, बहुत सौ का दिया। आप लोगों की मोहब्बत का कायल हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। अच्छा, ये जो है 2017 का वाक़या है। एक शख्स सेंटा क्लॉज बना हुआ फ़लस्तीनी झंडा लहरा रहा है, उसके बाद, और ये अपनी गजा की हदूद में था, बॉर्डर के करीब था। तभी बॉर्डर के उस पार से कहते हैं कि इस शख्स को इजरायली फौजी ने गोली मार दी थी। इसे फिर उठा कर ले जाया गया था। स्नाइपर ने गोली मार दी थी सेंटा क्लॉज को साल 2017 में। क्या गुनाह था इसका? बस गुनाह ये था कि हाथ में फ़लस्तीनी झंडा था। लोग पूछते हैं कि 7 अक्टूबर को आखिरकार हमास ने वो क्यों किया? पूछिए जाकर, 7 अक्टूबर से पहले 1900 के दशक से, 40 के दशक से क्या हो रहा था? अब मैसिव मिसाइल अटैक, रूस ने खार्किव जो यूक्रेन का इलाका है, मैसिव बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है। मैसिव, जबरदस्त तरीके से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और वहां पर काफी तबाही हुई। हालांकि यूक्रेन का कहना है सिर्फ 1 लोग मारे गए हैं, लेकिन तबाही बहुत हुई है। रूस ने यूक्रेन के जो हमले थे ड्रोन वाले, जो उनकी रिहायशी इलाकों पर थे, उनका बदला लेना शुरू कर दिया है या बदला ले लिया है। फिलहाल खार्किव में जो मेयर हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ काफी इंटेंस तरीके से और पागलपन के तरीके से रूस ने मिसाइलें दागी हैं। ताज की एक खबर है और मैंने इस खबर का भी थोड़ी देर पहले वीडियो देखा है। आज कजाकिस्तान में एक पैसेंजर प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है, यूं आता है। और जहां तक मेरी जानकारी है, एक चिड़िया के टकराने से प्लेन में गड़बड़ हो गई। चिड़िया की इतनी ताकत है कि चिड़िया के तरह उड़ने वाले प्लेन उससे कहीं 1000 गुना बड़े आकर गिर जाते हैं। चिड़िया को उसने बनाया है। 20, हालांकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुदरत की ताकत आपको बता रहा हूं। 25 लोग इस प्लेन हादसे में बच गए। प्लेन यूं आता है, धड़ से नीचे गिरता है बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से, एक आग का गुबार निकलता है। मैंने तो सोचा कोई बचा नहीं होगा, लेकिन फिर मुझे पता चलता है कि 67 लोग प्लेन में सवार थे। इसमें 5 क्रू मेंबर्स थे और इनमें से 25 लोग सरवाइव कर गए हैं। मैंने उन्हें निकलते हुए प्लेन से देखा है, लंगड़ा रहे, खड़े हुए, मिट्टी लगी किसी के, बच गया। मैं हैरत में हूं, दुनिया हैरत में है कि कैसे इतने बड़े हादसे में बच गए। और इनमें से 22 को हॉस्पिटल भेजा गया है। 3 फिर भी ऐसे थे, उन्हें फौरन कहा कि आप घर चले जाओ। मतलब घर क्या, चले जाओ।
فلائٹ تو کہاں سے کہاں بتایا جا رہا ہے کہ آذربائیجان سے جو ہے وہ قزاقستان جا رہی تھی، بیچ میں یہ فلائٹ جو ہے وہ کریش ہو گئی۔ فی الحال وہ کہتے نا جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہی والی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔